Hello everyone, good evening. Welcome to this class. And today we'll be discussing about the genetics question answer series, and this is the session 3 and the third session of this question answer series. And we have already completed 2 sessions of this particular topic, that means genetics. So this is the third class, and we will continue this question answer series. As you know, this is a very important this is a very important unit for CSIR examination, and for concept based for conceptual purpose, and also a good coverage of question you will get in the examination, in the CSIR examination, that's for sure. And if you understand this like concept properly, and if you understand this like mechanism, understand this I can say way of solving this question, how to solve this question, then it will be easier for you to attend these questions in the examination. And if you are new to the channel, I will request you to subscribe the channel and press the notification bell for the further notification, and also you like the video and share the video, okay, so that like your friends, your like acquaintances, they can also be benefited by these classes. Okay, so other classes of inheritance biology and other practice series classes are available in the channel. I will give you the like link, or I will show you where you will get those classes afterwards. Okay, so first we will discuss the questions. So this is the first question of today what we will discuss, and for your better understanding I will speak to you in English and Hindi mixed. Okay, so for better understanding. So the question says, a test cross was made with phenotypically wild type Drosophila flies having genes for sepia eye and curled wing. The characters are sepia eye and curled wing. Okay, so the cross is test cross. That means one individual is wild type. Okay, wild type in heterozygous condition. So they mentioned here wild type but in heterozygous condition. So that means if we consider sepia eye as S, sepia eye as S, like for example, if we consider wild type, so S plus, and curled wing as C plus. Okay, so these two are wild type. WT means wild type, and so its respective mutant like alleles, or its respective mutant alleles will be S and C respectively. S and C, the mutant form. Okay, and you know that in test cross, so we take one individual, okay, which is wild type, or or heterozygous. Here they mention heterozygous, so we can take one individual which is heterozygous, and we can take another individual which is recessive for both the loci. दोनों लोकस के लिए हम रिसेसिव लेते हैं. तो टेस्ट क्रॉस में एक इंडिविजुअल होगा जो कि एस सी, नीचे भी होगा एस सी. इसके साथ क्रॉस करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है कि वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोला गया है. तो इसका मतलब ये है एस प्लस सी प्लस, नीचे होगा एस सी. सो दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन. इसको अगर जीनोटाइप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, एस प्लस एस, सी प्लस सी. दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन, राइट. तो इस क्रॉस से क्या हमें यहाँ पे फिनोटाइप्स मिले, और उसके आगे कितने नंबर के इंडिविजुअल्स मिले उस पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए, वो यहाँ पे मेंशन्ड है. सो वाइल्ड टाइप जो कि दोनों के दोनों प्लस है, एस प्लस सी प्लस, वो है 400. सिपिया आई
सीपिया देखिए यहाँ पे आपको ये जो फिनोटाइप है इसके रेस्पेक्ट में जो जीनोटाइप होगा वो आपको समझ जाना चाहिए, और अगर आप नहीं समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत हो सकती है क्रॉस में, ठीक है, और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके पास आप इसके जो जीनोटाइप है वो भी लिख लीजिए जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, और हमने यहाँ पे कंसिडर किया है S प्लस एंड C प्लस फॉर वाइल्ड टाइप, तो लिखेंगे हम S प्लस C प्लस। सीपिया आई को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सीपिया आइड मतलब यहाँ पे सीपिया आइड मतलब जो रिसेसिव जो सीपिया आई जो लोकस है, जो सीपिया आई के जो लोकस है उसमें ये रिसेसिव है। बाकी वाइल्ड टाइप को हमें अक्सर क्या होता है, वाइल्ड टाइप को इन फिनोटाइप्स में नहीं लिखा जाता, इन फिनोटाइप्स में नहीं लिखा जाता वाइल्ड टाइप को वाइल्ड टाइप ही लिखा जाएगा। तो सीपिया आई का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, सीपिया आई का यहाँ पे जीनोटाइप होगा S C प्लस। सीपिया आई का मतलब होगा जो कर्ल्ड विंग का जो लोकस है वो वाइल्ड टाइप है, और जो सीपिया आइड है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वही यहाँ पे फिनोटाइप में लिखा होता है। वाइल्ड टाइप में कोई रिसेसिव कैरेक्टर नहीं है, दोनों के दोनों प्लस वाला जो है यही शो करेगा, तो इसलिए लिखा जाता है वाइल्ड टाइप। सीपिया आइड में सीपिया आइड रिसेसिव लोकस वाला है, इसलिए उसको लिखा जाता है सीपिया आइड। तो कर्ल्ड विंग को क्या लिखेंगे हम, कर्ल्ड विंग का जो जीनोटाइप होगा उसमें हम लिखेंगे S प्लस और C। यहाँ पे C जो है वो रिसेसिव होगा, रिसेसिव लोकस होगा। और देखिए सीपिया आइड एंड कर्ल्ड विंग, इसमें हम क्या लिखेंगे, दोनों के दोनों विदाउट प्लस, मतलब दोनों के दोनों म्यूटेंट, S भी म्यूटेंट C भी म्यूटेंट, S C, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरेंटल क्रॉस है वो क्या है, इसमें टेस्ट क्रॉस जो किया गया है उसी को हम पेरेंटल क्रॉस मानेंगे। जो क्रॉस में जो इंडिविजुअल्स यहाँ पे शामिल है उसको ही हम पेरेंट मानेंगे। तो एक पेरेंट होगा ये, दूसरा पेरेंट होगा ये। तो पेरेंटल टाइप के जो गैमेट्स है, इसमें से पेरेंटल टाइप के जो गैमेट्स है वो कौन कौन से होंगे, S प्लस C प्लस एक पेरेंटल गैमेट, दूसरा S C ये पेरेंटल गैमेट। तो ये जो दोनों जो पेरेंटल गैमेट है, तो इन दोनों पेरेंटल गैमेट अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है, ये वाइल्ड टाइप है। तो ये क्या है, ये सेपिया कर्ल्ड है, शॉर्ट में लिखते हैं सेपिया कर्ल्ड। तो इसके अलावा और दो गैमेट भी मिल सकते हैं हमें, और वो गैमेट्स क्या क्या होंगे, वो गैमेट्स होंगे क्रॉसिंग ओवर की वजह से, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। एक होगा S प्लस C, दूसरा होगा S C प्लस। इसमें ये पहला वाला क्या है, ये है कर्ल्ड, ये क्या है, ये सेपिया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं, और ये हमें पता होना चाहिए। अगर रिकॉम्बिनेंट हम नहीं जानते हैं तो हम मैप डिस्टेंस वगैरह अगर ऑप्शन में होते हैं उसको हम नहीं निकाल सकते, अगर हम रिकॉम्बिनेंट को नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कौन कौन से है, कर्ल्ड और सेपिया। तो 150 एंड 100, ठीक है। और पेरेंटल कौन कौन से है, दिस वन 400 वाला और 350। टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1000 है, टोटल 1000 है, ठीक है। अभी ऑप्शन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन को देखते हैं, जैसे बोला गया है क्वेश्चन में, अगर आप उस तरह से फॉलो करते हैं तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। पहला क्या बोला गया है, द रिजल्ट इंडिकेट्स, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट, मतलब जो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट रिजल्ट को बताता है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा करेक्ट रिजल्ट को बताता है, हमें वो देखना है। सो पहला यहाँ पे बोला गया है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज वाइल्ड एंड डबल म्यूटेंट टाइप्स आर इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहले बोला गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है क्योंकि वाइल्ड एंड डबल म्यूटेंट, दिस इज वाइल्ड 400 वाला और डबल म्यूटेंट मतलब 350 वाला, बोला गया ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के हैं, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का और इस बात का कोई
रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसा मतलब बोलना चाह रहे हैं कि दोनों के दोनों इक्वल नंबर के हैं, तो हो सकता है ना कि ये भी वाइल्ड टाइप भी 50% और म्यूटेंट भी 50%, ये भी तो इक्वल हुआ ना। वाइल्ड टाइप भी 50% और डबल म्यूटेंट भी 50%, तब तो इक्वल हुआ ना, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ ना। तो ऐसा अगर होता तो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। तो ऐसे 50% वाइल्ड एंड 50% डबल म्यूटेंट, अगर ऐसे रिजल्ट को हमें किसी के साथ रिलेट करना है, किसी के साथ अगर रिलेट करना है, तो हम क्या बोलेंगे फिर? लिंकेज है, वो पूरा का पूरा लिंकेज है, नॉट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंकेज का ऑपोजिट है, कंप्लीट लिंकेज का ऑपोजिट है, तो ये गलत है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का और इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अनइक्वल सेग्रीगेशन एज इट इज शोइंग डिपर्चर फ्रॉम 1:1:1:1 रेशियो। तो देखिए, ये रेशियो 1:1:1:1 नहीं है टेस्ट क्रॉस का, ये टेस्ट क्रॉस है, लेकिन रेशियो 1:1:1:1 नहीं है। और बोला गया है कि 1:1:1:1 से ये रेशियो भटक गया है, इसका मतलब अनइक्वल सेग्रीगेशन है। तो फिर से वही बात, अनइक्वल सेग्रीगेशन का और इस रेशियो से भटक जाने का कोई रिलेशन नहीं है। अनइक्वल सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन तो नहीं है यहाँ पे। अनइक्वल सेग्रीगेशन मतलब कि ये जो गैमेट है, ऐसा तो नहीं है कि एक गैमेट में 2 की जगह पे 3 एलील ला चुके हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो अनइक्वल सेग्रीगेशन हम नहीं बोल सकते। तो कोई रिलेशन, इन दोनों बात का कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत। थर्ड, कंप्लीट लिंकेज एज 2 जीन्स आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड। अगर कंप्लीट लिंकेज होता, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कंप्लीट लिंकेज यहाँ पे होता तो सिर्फ ये जो 2 पेरेंटल गैमेट आपको दिख रहे हैं लाल से, रेड कलर से जो मैंने 2 गैमेट बनाया है यहाँ पे गोल गोल करके, S+, C+ और SC, सिर्फ ये दोनों गैमेट ही बनते अगर कंप्लीट लिंकेज होता। बाकी रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स नहीं बनते, और बीच के जो 150 इंडिविजुअल्स और 100 इंडिविजुअल्स, ये दोनों नहीं मिलते, ये दोनों आते ही नहीं। तो कंप्लीट लिंकेज भी नहीं है। अभी बोला गया लिंकेज, द 2 जीन्स आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। बोला गया लिंकेज है, लेकिन किस तरह के लिंकेज है नहीं बोला गया है। यहाँ पे उन्होंने बोला है लिंकेज। नाउ ये लिंकेज कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है नहीं बोला गया है, लेकिन उसके आगे एक स्टेटमेंट दिया है कि द 2 जीन्स आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। तो ये जो 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस में 2 जीन रहते हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? रिकॉम्बिनेंट से पता चलेगा, है ना। रिकॉम्बिनेंट है, उससे पता चलेगा। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने हैं देखते हैं एक बार। 150 + 100, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। टोटल कितना है? 1000 है, इंटू 100। ऐसे करेंगे तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऊपर बाय टोटल नंबर इंटू 100, कितना आता है? यहाँ पे ये कट हो गया 10, ऊपर क्या कितना है? ये आया, ऊपर करते हैं, सॉरी 250 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 25 सेंटीमॉर्गन ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर 25 सेंटीमॉर्गन आ रहे हैं, दिस इज नॉट कंप्लीट लिंकेज, बट लिंकेज तो है। इनकम्प्लीट लिंकेज भी होगा, फिर भी उसको लिंकेज तो हम बोलेंगे। तो हम अगर कंप्लीट लिंकेज है, या ऐसा टर्म अगर बोलता है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन में ऐसा होता कि कंप्लीट लिंकेज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है लिंकेज, तो लिंकेज हो सकता है, इनकम्प्लीट लिंकेज भी हो। तो बाकी तीनों के कंपैरिजन में लास्ट जो स्टेटमेंट है वो बेटर है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4th वन। बाकी जो 3 है उसके कंपैरिजन में लास्ट जो स्टेटमेंट है वो बेटर है। सो दिस इज अ बेटर इंटरप्रिटेशन। ओके, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। 4th इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं, मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके रिलेटेड यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आपको चैनल में मिलेंगे, जिसमें मैंने ये क्रॉस के वगैरह के क्लासेस लिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस बायोलॉजी का एक अलग प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडिग्री का क्वेश्चन है। सो पेडिग्री क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। यहाँ पे एक पेडिग्री है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे क्या लिखा गया है, दो क्वेश्चन यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछा गया है, करेक्ट आपको बताना है या इनकरेक्ट बताना है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। और द फॉलोइंग डेरिवेशंस आर मेड फ्रॉम द पेडिग्री चार्ट।
तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है ए बी सी डी ई, जो यहाँ पे स्टेटमेंट बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये जो पेडिग्री, यहाँ पे जो पेडिग्री बताया गया है, बनाया गया है पेडिग्री फैमिली का, तो एक और दो जो भी फैमिली का बनाया गया है, तो उसमें ये सूट करता है कि नहीं करता है, ये सूटेबल होता है कि नहीं होता है. ओके, इज देयर एनी लाइक करेक्ट, लाइक ये जो मैच है स्टेटमेंट का और वहाँ पे जो हो रहा है, वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें देखना है. तो देखते हैं. पहले बोला गया है, पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलते जाएंगे और चीज़ों को करते जाएंगे तो हमेशा पेडिग्री के क्वेश्चन आपके सही होंगे. और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट को फॉलो करना है. पहला स्टेटमेंट क्या है? द ट्रेट मतलब जो कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है. क्या कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बट यहाँ पे कैरेक्टर शो होने का, एक्सप्रेस होने का हमें कहाँ से पता चल रहा है? वो ब्लैक जो बोल्ड जो यहाँ पे पूरा बनाया गया है, ठीक है, जैसे कि पहला ये वाला इंडिविजुअल, जैसे कि ये वाला इंडिविजुअल, ये सब वो उस कैरेक्टर को शो कर रहा है. तो ट्रेट जो कैरेक्टर शो हो रहा है कैन बी वाई लिंक्ड बिकॉज फर्स्ट पेरेंट, मतलब ये वाला जो मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया मैंने ब्लू से, फर्स्ट पेरेंट प्रोड्यूस्ड 2 चाइल्ड, मतलब इस पेरेंट से सेकेंड जनरेशन का ये जो फोर्थ इंडिविजुअल है ये बन रहा है. मैंने जो एरो करके बताया है, बोला गया कि इसके वजह से हम बोलेंगे, इस इनहेरिटेंस पैटर्न के वजह से हम बोलेंगे कि ये वाई लिंक्ड है. ये तो पॉसिबल नहीं है. वाई लिंक का मतलब क्या होता है? जो अगर फादर अफेक्टेड है उसके सारे सन अफेक्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे डॉटर भी अफेक्टेड हो रहे हैं. सेकेंड जनरेशन का फोर्थ इंडिविजुअल एंड सेकेंड जनरेशन का सिक्स्थ इंडिविजुअल भी अफेक्टेड है, जो दोनों डॉटर है. तो ये तो वाई लिंक का पैटर्न नहीं है. तो ए स्टेटमेंट गलत हो गया. समझ आ रहे? सेकेंड बी स्टेटमेंट, द ट्रेट कैन नॉट बी, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को, कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव बिकॉज 2-4 सेकेंड जनरेशन का फोर्थ पेरेंट प्रोड्यूस्ड 3-1 and 3-3 चिल्ड्रेन. सेकेंड जनरेशन का जो फोर्थ पेरेंट है, जो मतलब ये वाला, ये जो मैंने एरो बनाया है, सेकेंड जनरेशन का जो फोर्थ पेरेंट है, वो बता रहा है कि ये पेरेंट कौन सा इंडिविजुअल बना रहा है? ये बना रहा है 3-1 and 3-3. 3-1 मतलब दिस वन एंड 3-3 मतलब दिस वन. दोनों के दोनों सन है और दोनों के दोनों नॉर्मल है. तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम देखेंगे. तो ये जो सेकेंड जनरेशन का फोर्थ इंडिविजुअल है, इसका जीनोटाइप क्या होगा? अगर ये सपोज मान लीजिए कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न से ये कैरेक्टर शो हो रहा है, तो ये डेफिनेटली होगा स्मॉल ए, क्योंकि ये फीमेल है, एक वाई क्रोमोसोम नहीं होगा. दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे और एक्स क्रोमोसोम को हम मान लेते हैं स्मॉल ए, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान के चल रहे हैं, अब तक चल रहे हैं. तो स्मॉल ए ये नॉर्मल है, सॉरी ये अफेक्टेड है. और यहाँ पे जो फादर है वो नॉर्मल है. और यहाँ पे ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर हम मानते हैं, एक्स लिंक्ड मानते हैं, तो फादर में एक तो वाई क्रोमोसोम है और ये नॉर्मल अगर है और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर पैटर्न है, तो फादर में दूसरा जो एक्स वाला जो एलील होगा, एक्स क्रोमोसोम में जो एलील होगा वो कैपिटल ए होगा. तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो सन है थर्ड जनरेशन के जो दो इंडिविजुअल है, थर्ड जनरेशन के जो दो यहाँ पे जो सन है, थर्ड जनरेशन का 1, थर्ड जनरेशन का 3, ये दोनों के दोनों सन है. और सन्स को हम बोलेंगे सन्स को, ठीक है, जो यहाँ पे बेटे हैं, बेटे को, ठीक है, उनको वाई क्रोमोसोम सिर्फ फादर से वाई क्रोमोसोम ही मिलेगा. तो फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम इन दोनों को मिलेगा, इसको भी और इसको भी वाई क्रोमोसोम ही मिलेगा. बाकी एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलेगा, मदर से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा. और मदर के पास दोनों के दोनों स्मॉल ए है, देख सकते हैं, मदर के पास दोनों के दोनों स्मॉल ए है. सेकेंड जनरेशन का जो फोर्थ इंडिविजुअल है, जो मदर है उनके पास दोनों के दोनों स्मॉल ए है. तो हमेशा इनको स्मॉल ए ही मिलेगा मदर से. अगर स्मॉल ए मिलता है तो इनको तो अफेक्टेड होना चाहिए, एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट की एक्स लिंक्ड रिसेसिव. ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर होता तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता. तो कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड, ये बात सही है.
कैन नॉट बी एक्स लिंक रिसेसिव, ये बात सही है। समझ आया? एक सेकेंड। ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। द ट्रेट कैन बी एक्स लिंक डोमिनेंट बिकॉज 1 पेरेंट प्रोड्यूस 2 5 चाइल्ड। 1 पेरेंट मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट ये पेरेंट है, बताया गया है दिस पेरेंट विल प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन का फिफ्थ। तो ये इसी के चाइल्ड है, ये इनके डॉटर है। तो ये इंडिविजुअल ये प्रोड्यूस मतलब ये ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा बोला गया है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, जो सॉरी एक सेकेंड, दिस इज नॉट वर्किंग, सो इसी को ऐसे ही करते, इसको ही करते हैं। तो दिस इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस दिस डॉटर। ओके, तो देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। बोला गया है कि एक्स लिंक डोमिनेंट होना चाहिए, बोला गया है एक्स लिंक डोमिनेंट होना चाहिए। तो एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे होगा? और ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, ठीक है, तो कैपिटल ए और वाई क्रोमोसोम इसके पास होगा, और ये डोमिनेंट है इसीलिए डिजीज्ड है। और ये नॉर्मल है और डिजीज डोमिनेंट है बोला गया है, तो ये डेफिनेटली स्मॉल ए होगा। समझ रहे आप लोग? आई होप समझ रहे आप लोग। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार साइड बाय साइड आप खुद भी ये क्रॉस करें साथ साथ, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन अगर है, तो इस डॉटर को फादर से, ये डॉटर है ना, फादर से एक तो एक्स क्रोमोसोम मिलेगा ही, और फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो कैपिटल ए है। तो फादर से हमेशा इसको कैपिटल ए मिलेगा, जितने भी डॉटर है सभी को फादर से कैपिटल ए मिलेगा और मदर से स्मॉल ए मिलेगा। और अगर डोमिनेंट कंडीशन है तो ये इस डॉटर को डिजीज्ड होना चाहिए था, नॉर्मल नहीं होना चाहिए था। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। डी स्टेटमेंट, द ट्रेट इज अनलाइकली नॉट लाइकली अनलाइकली टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव। मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता, बोल रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता बिकॉज सेकेंड जनरेशन का 6th इंडिविजुअल एंड सेकेंड जनरेशन का 7th इंडिविजुअल ये दोनों पेरेंट है, दिस वन एंड दिस वन जो मैंने स्टार मार्क दिया, ये दोनों पेरेंट है। तो ये दोनों पेरेंट 3rd जनरेशन का 4th इंडिविजुअल, तो इनके जो डॉटर है ये वाला, इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो और इसी वजह से ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया है स्टेटमेंट में। तो डेफिनेटली अगर ये रिसेसिव है, अगर सपोज मान लेते कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये भी होना चाहिए स्मॉल ए, ये भी होना चाहिए स्मॉल ए। और इसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये जो डॉटर है 3rd जनरेशन के जो 4th इंडिविजुअल जो डॉटर है, इसको भी अफेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन ये तो नॉर्मल है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं होगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज बोला गया है कि अनलाइकली टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। ई स्टेटमेंट, द ट्रेट में बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो एक ही बचा है अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ये जो ट्रेट है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। तो ये एक ही बचा है, बाकी एक्स लिंक डोमिनेंट हमने देख लिया, एक्स लिंक रिसेसिव हमने देख लिया, ऑटोसोमल रिसेसिव हमने देख लिया, वाई लिंक्ड हमने देख लिया, तो एक ही बचा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ये करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, डी एंड ई। तो पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि बी, डी, ई है। समझ आया? तो देखिए पेडिग्री क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने पढ़ा है पहले कि ऐसे होते वैसे होते, मतलब मेल टू मेल ट्रांजिशन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर, मैं पहले भी क्लास में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि उसी के ऊपर आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस मत रहिए, आप क्रॉस करके देखिए, जो ऑप्शन बोला गया है उसके हिसाब से जीनोटाइप को आप अप्लाई कीजिए और क्रॉस
जो चीज़ें हो रहे हैं उसको फॉलो अप कीजिए, तब जाके पेडिग्री के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। पेडिग्री का मतलब पेडिग्री क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी फॉल्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक क्लास लूँगा आप लोगों के, तो उस क्लास को आप फॉलो करना, ठीक है। और ये अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। सो डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरियल स्ट्रेन विथ जीनोटाइप at B+, C+, D+, E+, F+ was isolated and used to transform a strain of bacteria with the genotype A-, B-, C-, D- and D-, E- and F-. So यहाँ पे ये एट नहीं होना चाहिए था, ये जो टी है ये टी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, टी नहीं होना चाहिए था, ये A+ होना चाहिए, जीनोटाइप A+, B+, C+, D+, E+, F+। तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा इसको A-, B-, C-, D-, E-, F- को, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द ट्रांसफॉर्म सेल्स वर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ को ट्रांसफॉर्म जीन। तो को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, कोई भी दो जीन एक साथ गए हैं, दो या दो से ज़्यादा जीन एक साथ गए हैं कि नहीं गए हैं, एक साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करना है, मतलब उसको हम को ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, को ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो को ट्रांसफॉर्म जीन्स को यहाँ पे टेस्ट करना है, देखना है। एंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ को ट्रांसफॉर्मेंट्स वर ऑब्जर्व, और नीचे दिए गए जो को ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब दोनों कौन कौन से दोनों जीन किस किस पेयर ने एक साथ ट्रांसफॉर्म किए हैं, कौन कौन से जीन एक साथ गए हैं, एक साथ ट्रांसफॉर्म किए हैं, वो नीचे दिया गया है। ए के साथ सी ट्रांसफॉर्म हुआ है, ई के साथ डी ट्रांसफॉर्म हुआ है, डी के साथ बी ट्रांसफॉर्म हुआ है, बी के साथ एफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, एंड सी के साथ ई ट्रांसफॉर्म हुआ है। आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन, और हम कैसे निकालते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन। जो जीन, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसके पीछे का सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो दोनों जीन एक साथ ट्रांसफॉर्म हुए हैं वो दोनों जीन पास पास है, दे आर क्लोजली लोकेटेड, दे आर क्लोजली लोकेटेड। जो लोग नहीं जाते हैं, जो लोग नहीं ट्रांसफॉर्म होते हैं एक साथ, वो दोनों जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, दूर होते हैं। तो यहाँ पे ए एंड सी एक साथ गए तो मतलब ए एंड सी पास पास है। तो करेक्ट ऑर्डर हमें कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल फॉर्मूला, सिंपल आप प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ए के साथ सी गया है तो क्या लिखेंगे हम, ए सी लिख लिया हमने, ए सी, प्लस को छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक ही एलील है तो जो ए है वही ए प्लस है, एक ही बात है। तो ए सी, उसके बाद सी के साथ कौन गया है, अभी सी के साथ कौन गया देखते हैं, सी को ढूंढते हैं, कहाँ पे सी है, ये वाला। सी के साथ कौन गया है, ई, तो उसके बाद आएगा ई, ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। अभी ई हमने देख लिया, अभी ई को ढूंढते हैं, दूसरे ऑप्शन में ई को ढूंढते हैं, ये रहा ई, ई के साथ गया है डी, इसके बाद आएगा डी, फिर डी को ढूंढते हैं ऑप्शन में, डी कहाँ पे है, ये वाला, द क्वेश्चन में डी को ढूंढते हैं, ये डी, डी के साथ कौन गया है, डी के साथ गया है बी, डी के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है बी, और अभी एक ही बचा है बी, बी के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है एफ, तो लास्ट में है एफ। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन इज दिस वन, तो यही इसका आंसर होगा। कहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन है, पार्ट सी के क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या जो टेलीग्राम आपके ग्रुप है उसमें मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपको मतलब फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपको चाहिए तो क्लासेस इसके बारे में। तो नेक्स्ट ये क्रॉस के क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। अब इन अ प्लांट मेल स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील फॉर अ न्यूक्लियर जीन, और वो बताया गया है AMS, दिस इज द डोमिनेंट एलील फॉर अ न्यूक्लियर जीन। और ये क्या करता है, ये करता है मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स, There are also lines, कुछ दूसरे प्लांट्स भी है which carry a gene whose dominant allele F, capital F, restores the male fertility, और इसके ऑपोजिट काम
एक है जो कि मेल को स्टेराइल, मेल प्लांट्स को स्टेराइल बनाता है। दूसरा एक प्लांट है, दूसरे एक टाइप का प्लांट है जो कि मेल फर्टिलिटी करता है, मतलब मेल स्टेरिलिटी को रिवर्स कर देता है, यानी कि मेल को फर्टाइल बनाता है। सो एफ जो है ये मेल को फर्टाइल बनाएगा। These are called restorer gene, restorer lines। तो ये जो जिसमें F है, जिसमें कैपिटल F है, जो कि मेल को फर्टाइल बनाता है, वो है रिस्टोरर लाइन्स। उन प्लांट्स को बोलेंगे रिस्टोरर लाइन्स। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि क्या क्रॉस किया गया है। अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ मेल स्टेराइल लाइन एंड अ होमोजाइगस रिस्टोरर लाइन। और आगे क्या बोला गया है, which does not contain the MS, ये वाला एलील जिसके पास नहीं है। Of the F1 progeny, only those that carry the MS allele, capital MS allele, are allowed to self-pollinate। उसको self pollinate हमने किया है। What is the probability of obtaining a male sterile line in the resulting F2 progeny? तो F2 प्रोजेनी में मेल स्टेराइल जो लाइन है उसको मिलने का, उस चीज़ को ऑब्टेन करने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बहुत ही कम आइडिया है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखना मेरे जो इनहेरिटेंस बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्लासेस हैं। तो उस क्लास को आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। आपको अगर सही से अटेंड करना है, सही से अगर आपको करके आना है एग्जाम में, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस मोर एंड मोर डेप्थ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें जस्ट आपको फॉलो करना है कि क्या हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे आंसर तक। तो देखिए बोला गया है कि एक प्लांट है जो कि मेल स्टेराइल, उसको क्रॉस करेंगे। और देखिए मेल, ध्यान सुनिएगा, मेल स्टेराइल, यहाँ पे दोनों चीज को हमें देखना है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं और उसके लिए दो टाइप के जीन हैं। एक है मेल स्टेरिलिटी का जीन, दूसरा है मेल फर्टिलिटी का जीन, ठीक है, जिसको बोलेंगे रेस्टोरर जीन। एक है मेल स्टेरिलिटी जीन, दूसरा है रेस्टोरर जीन। तो मेल स्टेरिलिटी जीन डोमिनेंट कंडीशन में तभी काम कर सकता है अगर जो मेल फर्टिलिटी वाला जीन है वो अगर रिसेसिव है। तो इसको ध्यान देना है आपको। तो जो पहला इंडिविजुअल है जो कि मेल स्टेराइल जिसको क्रॉस करेंगे, तो उसका जीनोटाइप होगा एम, कैपिटल एम एस, ये है मेल स्टेरिलिटी वाला लोकस। और दूसरा लोकस क्या है, स्मॉल एफ। अगर ये स्मॉल एफ नहीं होगा, इसमें एक भी कैपिटल एफ होगा, तो ये मेल स्टेरिलिटी वाला जो जीन है वो काम नहीं कर सकता। तो ये एक प्लांट है। दूसरा प्लांट क्या है, दूसरा प्लांट है जिसमें जो कि रेस्टोरर लाइन है, और उसके बारे में बताया गया है कि ये होमोजाइगस रेस्टोरर लाइन है और जिसके पास कोई भी कैपिटल एम एस एलील नहीं है, बोला गया है नहीं है। तो एम एस वाला जो लोकस है उसमें स्मॉल एम एस होगा, और जो रेस्टोरर लाइन है वो होमोजाइगस रेस्टोरर लाइन है, मतलब कैपिटल एफ होगा। इसके बीच ये पी जनरेशन है, इसके बीच अगर क्रॉस करेंगे तो F1 हमें मिलेगा। तो F1 कैसे मिलता है आपको पता है, इसमें से गैमेट बनेगा कैपिटल एम एस और स्मॉल एफ, इसमें से गैमेट बनेगा स्मॉल एम एस कैपिटल एफ। इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो बन जाएगा कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो यही बनेंगे। अभी बोला गया है कि ऑफ द F1 प्रोजेनी ओनली दोज दैट कैरी द एम एस एलील, और सभी के पास ही कैपिटल एम एस एलील होगा, उनको ही हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, मतलब एक के साथ दूसरे को हम पॉलिनेट करेंगे। तो F1 का जो क्रॉस है उसको यहाँ पे करते हैं। तो F1 का क्रॉस क्या है, कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस कैपिटल एफ स्मॉल एफ क्रॉस्ड विथ सेम सेल्फ पॉलिनेट। तो कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस कैपिटल एफ स्मॉल एफ। इस क्रॉस को हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। और हमें क्या देखना है, कितने इंडिविजुअल होंगे, कितने मेल स्टेराइल लाइन होगा, मतलब एक मेल स्टेराइल इंडिविजुअल को पाने के लिए
पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा इस क्रॉस से, F1 क्रॉस से F2 प्रोजेनी में वो मिलेगा मेल स्टेराइल लाइन। और मैंने बताया था मेल स्टेराइल लाइन का क्राइटेरिया क्या है। मेल स्टेराइल सिर्फ यहाँ पे एक ही जीन नहीं है, इसमें मेल फर्टाइल वाला जीन भी है, और वो मेल फर्टाइल वाला जीन कैसा होगा उसके ऊपर मेल स्टेरिलिटी वाला एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा वो भी डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। F1 का क्रॉस क्या है, कैपिटल MS आपको याद होगा, स्मॉल MS कैपिटल F स्मॉल f क्रॉस्ड विथ, दूसरा है कैपिटल MS स्मॉल ms कैपिटल F स्मॉल f, इसको क्रॉस करेंगे F1 में। तो किस मतलब कितने जीनोटाइप मिलेंगे, कैसे करेंगे हम, पहले गैमेट देखते हैं। यहाँ से क्या क्या गैमेट आएगा, ये आप शायद जो पहले मेंडेलियन प्रिंसिपल के जो क्लास है अगर आपने किया होगा उसमें मैंने बताया था, कैपिटल MS कैपिटल F, कैपिटल MS स्मॉल f, स्मॉल ms कैपिटल F और स्मॉल ms स्मॉल f, ये 4 मिलेंगे यहाँ से। और यहाँ से क्या यही मिलेगा, है ना। अभी देखिए ध्यान सुनिएगा, ये जो गैमेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ऐसे करके अगर हम क्रॉस करेंगे तो टोटल 16 आएगा। लेकिन हमें किस टाइप के जीनोटाइप चाहिए जिसके वजह से हमें यहाँ पे मेल स्टेराइल प्लांट्स मिलेंगे, वो किस टाइप का जीनोटाइप होगा जिसमें जो MS वाला जो लोकस है वो डोमिनेंट होना चाहिए। MS डैश मतलब एक लोकस में 2 एलील होते हैं, एक जीन में अगर एक लोकस को हम लिखते हैं तो 2 एलील होते हैं, तो एक तो कैपिटल MS होगा ही, वो तो होना ही चाहिए, नहीं अदरवाइज मेल स्टेराइल नहीं होगा। अभी जो दूसरा जो पोजीशन है वहाँ पे कैपिटल MS भी हो सकता है, स्मॉल MS भी हो सकता है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेकेंड लोकस है F वाला लोकस है उसमें हमेशा स्मॉल f ही चाहिए। अगर इसमें एक भी कैपिटल F आ गया तो मेल स्टेराइल वाला जो लोकस है, मेल स्टेराइल वाला जो जीन है ये काम नहीं कर सकता। तो पहला ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए ये कितने प्रोबेबिलिटी में होंगे, मतलब इस बात की आने की, ऐसे जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे हम इस चीज़ को, देखिए जस्ट आप लोकस वाइज क्रॉस कीजिए। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, लोकस वाइज को क्रॉस कीजिए, पहले सिर्फ इसको और इसको क्रॉस कीजिए। तो इस क्रॉस से ये जो मैंने ब्लू कलर का जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, तो MS क्रॉस विथ MS, इसको अगर लोकस वाइज हम क्रॉस करते हैं, पहला लोकस वाइज, तो इस चीज़ से ये बात आएगी इसमें डोमिनेंट आना चाहिए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4 है ना, 3/4। इसमें एक ही आएगा सिर्फ स्मॉल एस, बाकी सब में एटलीस्ट 1 वुड बी कैपिटल MS, तो 3/4। अभी क्या करेंगे, दोनों चीज़ का एक साथ होना, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट को एक साथ होना है। तो प्रोडक्ट रूल में अभी इस बात की प्रोबेबिलिटी, ऐसा जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड लोकस से, तो सेकेंड लोकस कौन सा है, कैपिटल F स्मॉल f, इससे ये वाला आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट को एक साथ होना है, तब जाके आपको मेल स्टेराइल प्लांट मिलेगा। तो कितना होगा, 3/16। तो आंसर इज 3/16। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, 3/16। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बहुत आसानी से करना है, लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, बस समझ के अच्छे से इसको करने के लिए और प्रोबेबिलिटी के जो चीज़ है उसको सही से अप्लाई करने के लिए आपको पहले प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अपने दिमाग में वो बहुत ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, अटक जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है, अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत होने के चांसेस है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी के जो क्लासेस मैंने लिया है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी के जो पहले क्लासेस में पहले की जो क्लासेस मैंने लिया है वहाँ पर आप उसको पहले देखिए, ताकि प्रोबेबिलिटी की जो चीज़ है, प्रोबेबिलिटी हर जगह आ सकता है, प्रोबेबिलिटी
पेडिग्री में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, और किसी जगह भी आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैन बी आस्क्ड इन एनी क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन एनी क्वेश्चन। कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ पे नहीं पूछेंगे, कहाँ पे पूछेंगे, नो गारंटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने मतलब करवाया था, मतलब यहाँ पे लिया है मैंने। बहुत चीज़ें आपको मतलब ऐसे पता, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगा आप लोगों के, और वो क्लास कैसे होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्लास में ऐसे लूँगा कि जीन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जीन ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, आप कैसे इस तरह के 3 पॉइंट क्रॉस में, 3 पॉइंट जो मैपिंग है, 3 पॉइंट मैपिंग, 3 पॉइंट क्रॉस, इसमें जीन ऑर्डर को, करेक्ट जीन ऑर्डर को कैसे निकाल सकते हैं। तो इस बारे में एक क्लास, मेरा नेक्स्ट जो क्लास आएगा, एक छोटा सा मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास टाइप, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास, तो उसमें मैं इस क्लास को, इस चीज़ को बताऊँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक मैं आपको एक झलक मैंने दिखाया अभी, ठीक है, हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप अब जो आपने किया उसको आपको समझ आया। तो ये जो मैंने बोला था कि 2 यहाँ पे ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। एक में प्रैक्टिस सीरीज जो है, आप देख सकते हैं जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर या प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर आपके जो डाउट है उसको लेके जो भी क्लासेस किए हैं वो आपको ऐसे इसमें मिलेंगे, इस प्लेलिस्ट में। और इनहेरिटेंस बायोलॉजी के जो क्लास है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, मेंडलिज्म के जो क्रॉस के क्वेश्चन है, ठीक है, 3 पॉइंट मैपिंग के क्वेश्चन जो है वो मैंने बेसिक जो है वो मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन एक क्लास मैं लूँगा जिसमें जो करेक्ट जीन ऑर्डर है वो कैसे निकालते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन ऑर्डर का निकालने का सही तरीका कौन सा है। आप लोग ऐसे देखे होंगे कि ऐसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते, बट विच वन ऑफ दोज इज द करेक्ट वे टू डू इट, कौन सा करेक्ट वे है जिसको फॉलो करने से आप कभी भी गलत नहीं होंगे, ऐसा आपको चाहिए ना। तो वो ऐसे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास एक आएगा, ठीक है, मैं 1-2 दिन में 1-2 दिन में ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जस्ट फॉलो कीजिए चैनल के जो आप नोटिफिकेशन उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और उसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास। तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो भी आपके डाउट है, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में, आइदर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर इसके साथ यहाँ पे एक लिंक आएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो उधर वहाँ पे एसोसिएटेड ग्रुप में आप अपना जो क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं। सो आई बी हैप्पी टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर, बाय एवरीबॉडी।